رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. 12 آیات ہم پڑھ چکے تھے سورہ عبسہ کی، اور ہم کو آیت نمبر 13 سے شروع کرنا ہے. فمن شاء ذکرہ، یعنی کہ جو چاہے اسے یاد کر لے. قرآن کے بارے میں ہم نے کیا کہا، کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ قرآن کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے، کہ اس کو سمجھنا، اس کی مہارت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی، اس کی تفسیر بھی جاننا. اس کو مطلب یہ کہ صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس عام جو علماء ہوتے ہیں انہیں یاد ہوتا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے تراویحوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے ایک لفظ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور نہ سننے والوں کو سمجھ آتا ہے، نہ ان کو خود بھی کوئی الفاظ کے معنی معلوم ہوتے ہیں، نہ کوئی ترجمے معلوم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے پڑھنے کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا. بس وہ ایک یاد کرنے کا ایک لوگوں میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ حفظ کرانا ہے، حفظ کرانا ہے. لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انسان کو قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم بھلے ہی ہم پورا نہ یاد کریں، ایک پارہ یاد کریں، یا ایک پارے کی ہم تفسیر پڑھیں، یا ہم ایک سال لگا دیں ایک پارہ پڑھنے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال میں ایک پارہ پڑھا کہ ہم کو شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ایک سال میں کیسے ہم نے ایک پارہ پڑھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کم سے کم اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ ہر آیت ہم جان سکیں، ہر آیت کا ہم ترجمہ بتا سکیں. پھر آگے آ رہا ہے فی صحف مکرمہ، وہ محفوظ ہیں قابل احترام صحیفوں میں. صحف مکرمہ کیا ہے، کہ یہ ایسے صحیفے ہیں. صحیفے سے کیا مراد ہے، ایسے پیجز. پیجز پہلے تو کیا تھا کہ یہ پیجز پہ لکھتے تھے نا، الگ الگ جگہوں پہ لکھتے تھے. کہ لوح محفوظ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی کہ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، یعنی کہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو پاکیزہ فرشتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں ہے. اور ساتوں آسمانوں کے اوپر معزز اور بلند مرتبے جو صاف ستھرے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. اب ہم بھی دیکھیے کہ قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، کہ اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں بچے اس کو بدتمیزی نہ کر لیں، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو ہمارا اکثر انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گھروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اوپر قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، طاق میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا کہ نیچے جیسے دوسری کتابیں، دنیاوی کتابیں جیسے پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ دنیاوی کتابیں نہیں اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا، بلکہ اس کو ادب سے رکھا جاتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی ادب سے نہ رکھ دیا جائے کہ اس کو صرف رکھا ہی جائے، بس اس کو جزدان میں بڑے خوبصورت سے جزدان میں لپیٹ کر اس کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا. اس کو صرف جب کھولا جا رہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن خوانی ہے، یا جب رمضان آ رہے ہیں تو جب کھولا جا رہا ہے، اور باقی کا ٹائم پورا کے پورا وہیں پر رکھا ہوا ہے. تو ایک بار اسی طریقے سے میں کسی کے گھر میرا جانا ہوا اور میں نے ان سے قرآن مانگا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن بالکل نیا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی ابھی دکان سے خرید کر لائے. اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ جب میں نے آبزرو کیا، ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ جو میری کلاس کی جو بہنیں تھی جنہوں نے 13 سال میں اپنا قرآن ختم کیا تھا لفظی ترجمے کے ساتھ، تو ان کے قرآن اتنے میلے ہو چکے تھے، اتنے اس کے جلد اس کی خراب ہو چکی تھی، اس کے پیجز لوز ہو چکے تھے، کہ ظاہر ہے وہ دن اور رات اس میں لگے ہوئے تھے نا، تو ان کے قرآن سارے کے سارے ایسے کمزور ہو چکے تھے. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے، اپنے اپنے قرآن لے کر دیکھیں کہ ہمارے قرآن کتنے نئے رکھے ہوئے ہیں، یا پھر واقعی وہ اس طریقے سے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کا ادب یہ نہیں ہے کہ اس کو اوپر رکھ دیا جائے، اس کا ادب دل میں ہونا چاہیے. کسی کی چیز کی، کوئی انسان ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس کا ادب، ہم احترام جب تک ہمارے دلوں میں نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھلے ہی اس کو آپ سونے کے باکس میں رکھ دیں، بھلے ہی آپ اس کو ایک اچھے سے لاکر میں رکھ دیں، اس کا یہ احترام نہیں ہے. اس کا احترام کیا ہے کہ اس کا دل میں اس کا احترام ہو، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو یہ ہے احترام. یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ہم نے ادب کی کتاب سمجھ کر ایک جگہ پر ہم نے رکھ دیا، اوپر ہم نے سجا دیا، بڑے اچھے انداز میں ہم نے اس کو سجا دیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ کیسا ہے، ایک تو قابل احترام صحیفوں میں ہے، اور بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں.
यानी कि ये कैसे फरिश्तों के हाथों में है, बी ऐदी सफरतिन, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है। यानी कि सफरा किससे है वर्ड, सफरा साफिर की जमा है, और साफिर इस किताब को कहते हैं जो हर चीज के हकायक को बेनकाब करती है। यानी कि तफासिर भी इसी से है, सफरा से तफासिर भी है। यानी कि साफिरा वो शख्स भी है जो ऐसी तहरीर लिखता है जिसमें सारी चीजें बयान हो जाती हैं, एक्सप्लेन हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। तो यहाँ पर सफरा का मीनिंग सफीर भी हो सकता है, कि सफीर क्या है, ऐसे लाने वाले मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते जो उनके हाथों से वो वहां से लेकर आते हैं, सातों आसमानों से लेकर आते हैं, लौहे महफूज से लेकर आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या लेकर आते हैं, सबके दिलों में पहुंचाते हैं। तो ये फरिश्तों के भी नाम हो सकते हैं कि ये कुरान को लिखने वाले निहायत मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्ग फरिश्ते हैं। और फिर वो, और दूसरे कैसे हो सकता है कि जो वही नाज़िल हुई, और यहाँ भी औराख में लिखने और जमा करने के वाले के दुनिया में जो जो लोग थे, तो वो लोगों ने लिखा उसको और उसके जमा किया उसको, तो ये भी ऐसे लिखने वालों के हाथों में है। किराम बररा, और जो मुअज़्ज़िज़ और नेकोकार है। अब यहाँ पर अगर फरिश्तों का भी मीनिंग लिया जाए, तो ये कैसे हैं फरिश्ते, मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं, अल्लाह के खास फरिश्ते हैं। अगर हम इनके जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ हम ले जाएं, क्योंकि वो वही लेकर आते थे, तो वो सबसे मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के सबसे करीब मुक़र्रब फरिश्तों में से है। तो ये फरिश्ते ऐसे हैं जो मुअज़्ज़िज़ हैं, और ये सारी चीज़ों का उनको एहतमाम करने के लिए दिया गया, कि किसी को ऐसे ही नहीं चुन लिया गया कि कुरान को पहुँचाने के लिए जो मुअज़्ज़िज़ हैं, नेकोकार हैं, वो उनको लाते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो कैसे हैं, नेकोकार हैं, दौड़ कर पढ़ने वाले, शौक से पढ़ने वाले, उनके दिलों में शौक जो पैदा हुआ है, तो वो नेकोकार जो लोग हैं, वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, अल्लाह की नज़र में कैसे हैं वो, मुअज़्ज़िज़ हैं, नेकोकार हैं। और वो ऐसे हैं कि कुरान को शौक से पढ़ते हैं, उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अल्फाज़ों को, उसकी तफ़सीर को, इस तरीके से हर चीज़ को समझने की वो कोशिश करते हैं। कुतिल इंसानु मा अकफरा, हलाक किया जाए इंसान किस कदर नाशुक्रा है, मा अकफरा, यानी कि इंसान किस कदर नाशुक्रा है। कुतिल इंसानु का क्या मतलब है, हलाक किया जाए इंसान। यहाँ पर एक अरबिक में एक मुहावरा है कि मतलब जब वो किसी को बुरा बोलना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मारा जाए। यानी कि जैसे हमारे पास कहते हैं ना कि मर जाओ या सत्यानाश हो जाए, इस तरीके जो बद्दुआएं दी जाती है, तो इस तरीके से ये बददुआइया अल्फाज हैं ये, कुतिलल इंसानु, कि तुम हलाक हो जाओ, या तुम्हारा बुरा हो जाओ, या तुम तबाह हो जाओ। तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है, माँ अकफरा, कि ये इंसान किस कदर नाशुक्र है वो, कि उसको ये कुरान दिया गया, उसको ये सारी नेमतें दी गई, और आगे नेमतों का जिक्र भी आएगा, तो उसके बावजूद भी फिर वो अल्लाह का नाशुक्र है। हर बार इंसान क्या करता है, उसको 9 चीजें मिल गई तो 10वीं चीज के पीछे भागता रहता है, और उसके लिए ही रोता रहता है। वो 9 चीजें जो है उसको नहीं देखता, बल्कि क्या करता है, वो चीज जो उसे नहीं मिली उसके लिए रोता रहता है, तड़पता रहता है, दुआएं करता रहता है, शिकवे शिकायत करता रहता है अल्लाह से कि ये तो चीज मुझे मिली ही नहीं, ये तो मुझे चाहिए। इस तरीके से उसका रोना ही खत्म नहीं होता। अक्सर हमारे आसपास भी लोग जो होते हैं, अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं कि क्या होते हैं कि उनके पास दुनिया की नेमतें हम देखते हैं, लेकिन वो सदा जब आपसे मिलेंगे तो सदा अपनी शिकवे शिकायतें उनके खत्म नहीं होते। ऐसे लोगों से क्या होता है, मिलने से लोग भी तंग पड़ते हैं कि अरे अब ये आई है तो अब ये जरूर रोना धोना अपना शुरू कर देगी, या अपने शिकवे शिकायत शुरू कर देगी। तो एक मुसलमान, एक मोमिन जो होते हैं, नेकोकार जो मोमिन होते हैं, तो उनके अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। उनके जुबान पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, कि कैसे, कि हर चीज में अल्लाह का शुक्र, कि अगर कोई तकलीफ भी पहुंच रही है तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र, कि हर चीज, हर जो भी हमें मिल रहा है, हो सकता है कि वो आजमाइश के तौर पे हमें मिल रही है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी आजमाइशें हैं जो हमारे बच्चों की तरफ से हमें मुब्तला हो रही है, या बीमारियों की शक्ल में हमें मुब्तला कर रही है, या माशी परेशानियां हैं, या कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसमें इंसान मुब्तला है, तो इंसान उसमें क्या करे, शुक्र और सब्र से काम ले। ये ना करे कि बस रोने और पीटने बैठ जाए कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। मिन अय्यि शैइन खलक़हु, किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया।
अब देखिए कि अल्लाह ताला खुद इसमें सवाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला खुद इस सवाल का आगे जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसान को याद दिला रहे हैं कि ए इंसान तो इतना नाशुक्रा है कि तुझे इतनी नेमतें देने के बावजूद भी क्या है, तू हर वक्त नाशुक्र हरकतें करता रहता है। तो तू पहले तो ये देख कि तुझे किस चीज से पैदा किया गया है। इंसान अपनी पैदाइश की तरफ देखे कि वो कैसे इंसान ने अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, एक खतरे से, जिस खतरे को अगर हमारे कपड़ों पे लग जाए तो हम उसको नापाक समझते हैं, फौरन धो लेते हैं। मिन नुत्फतिन, एक नुत्फे से। अल्लाह ताला खुद आगे जवाब दे रहे हैं कि ए इंसान तुझे किस चीज से पैदा किया हमने? एक नुत्फे से पैदा किया। खलक़हू फ़क़द्दरहू, फिर इसने इसको पैदा किया और इसने इसका अंदाजा लगाया। अब यहाँ पर देखिए कि एक नुत्फे से पैदा किया गया इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है कि इंसान इसमें अकड़ रहा है। इंसान की अकड़ को कमजोर करने के लिए उसको बताया जा रहा है कि ए इंसान, तुझे किस हालत में तुझे पैदा किया गया, कैसे तो क्या था, तो एक तेरी जो स्टार्टिंग है, जो काहे से हुई वो, ऐसे गंदे एक पानी के खतरे से, जिसके बारे में के इंसान उसको नापाक समझता है। इंसान अगर वो अपने को लग जाए तो इंसान को ये बताया जा रहा है कि वो कैसे नुत्फे से बच्चा बनाकर कैसी बेबसी की हालत में माँ के पेट से बाहर निकला। तो इसे ये हरगिज जुर्रत उसकी नहीं थी कि वो अपने खालिक का इनकार करता, नाशुक्री करता और इस तरीके से अल्लाह के अहकामात का इनकार करता, उसके कलाम को सुनकर उसका इनकार करता। और जब वो माँ के पेट में नशोनुमा पा रहा था तो फिर क्या हुआ, उसकी तकदीर भी तय कर दी। अद्दरहू, अद्दरा कैसे है, तकदीर से है कि उसकी तकदीर भी तय कर दी। अल्लाह ताला ने जब वो वहां पेट में ही था इंसान, तो उसके बारे में वो सारा कुछ लिख दिया कि उसकी उम्र कितनी होगी, वो कहाँ मरेगा, कहाँ दफन होगा, वो तंगदुस्त रहेगा या खुशहाल रहेगा, उसे ईमान मैसर आएगा या नहीं आएगा, वो कुफ्र की हालत में मरेगा या ईमान की हालत में मरेगा। ये सारी जो तफसीलात है वो मादर रहम में ही तय कर दी गई और उस मुकर्रर तकदीर के आगे वो बिल्कुल बेबस है। वो उसको कुछ भी नहीं मिटा सकता और कुछ भी नहीं अपनी तकदीर को चेंज कर सकता। बस ये कि हम एक हदीस में ये आता है कि तकदीर को बदलने वाली क्या है? सिर्फ दुआ है। दुआ तकदीर को इंसान के बदल देती है। तो ये यहाँ पर इंसान को ये बताया जा रहा है कि ए इंसान, तू किस लिए अकड़ता है? तो इस तरीके उसका जो तरीका है पैदा करने का, वो बिल्कुल ही बेकार, मतलब छोटा-सा है, एकदम ऐसा है कि एकदम कोई निग्लेक्टेबल है। तो ऐसी जगह से वो ऐसे तरीके से जो पैदा किया गया और इंसान ये सोच रहा है, किस लिए अकड़ रहा है इंसान और अल्लाह ताला के इनकार कर रहा है, इनकारी बन रहा है, नाशुक्रा बन रहा है, कुफ्र कर रहा है। उसके लिए अल्लाह ताला फिर आगे फरमा रहे हैं, सुम्मस्सबीला यस्सरहु, फिर रास्ता आसान कर दिया इसका। अब यहाँ पर देखिए, रास्ता आसान करने से भी क्या मुराद है, इसमें अलग-अलग मीनिंग हम निकलते हैं कि मुफस्सिरीन इसके अलग-अलग मीनिंग निकालते हैं। एक ये कि माँ के पेट से बाहर आना इसके लिए आसान कर दिया, कि जब बच्चा मादर रहम में होता है, नशो-नुमा पा रहा होता है, तो फिर वो जब बाहर निकलता है, तो इसके लिए तंग रास्ता होने के बावजूद भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, वज़े हमल के ज़रिए इसके वक़्त इतना उस रास्ते को इतनी लचक पैदा कर देते हैं कि फिर वो उसके लिए आसान हो जाता है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने उसको निकलना उसके लिए रास्ता आसान कर दिया और सोचिए कि अगर वो नहीं निकल उसके लिए रास्ता अल्लाह ताला मुश्किल कर दे, तो फिर इंसान को कितनी तकलीफ़ों से फिर उसको निकालना पड़ता है। फिर दूसरा मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी ऐसी तमाम क़ुव्वतें अता कर दी कि फिर वो दुनिया में आया तो उसके लिए सारे रास्ते आसान हो गए, उसके लिए जीना आसान हो गया, उसके लिए खाना और पीना, अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, ये सारी चीज़ें उसके लिए आसान कर दिया। फिर तीसरा मतलब क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसे खैर और शर के दोनों रास्ते समझा दिए, उसे फ़ितरत की तमीज़ भी सिखा दी। फिर उसके लिए रसूल और अंबिया भी भेज दिए, किताबें भी भेज दी, उसके ज़रिए सारा कुछ समझा दिया, उसे इख्तियार दे दिया कि वो जो राह चाहे इख्तियार कर ले। फिर जो रास्ता उसको पसंद आएगा, जो रास्ते की अल्लाह ताला उसे तौफीक अता फरमाएगा, वो रास्ते पर वो चल पड़ेगा। तो यहाँ पर कि इंसान के लिए एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने रास्ता हमें सीधा रास्ता दिखा दिया, हमें ऐसे-ऐसे घरों में पैदा किया। सबसे पहले तो हमारा शुक्र का मुकाम ये है कि हमें ऐसे घर में पैदा किया जो कि मुसलमान घर है, कि हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। जो लोग नॉन मुस्लिम से मुस्लिम होते हैं, आप देखिए कि उनकी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल वाली होती है।
एक तो उनके घर वालों से उन्हें लड़ना पड़ता है, फिर वो जब इधर आते हैं तो इधर भी उनको बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हमें हमें तो प्लेट में रखा हुआ बिल्कुल निवाला मिल गया कि बस उठाना है और हमने खाना है। तो हमको उसमें भी बड़ी मुश्किलें हैं, बड़े हम उसमें भी अलकसी करते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे घरों में पैदा किया, ऐसे नेक घरों में पैदा किया, ऐसे नेक वालिदैन हमको अता किए, जिन्होंने हमको दीन से जोड़े रखा। ये भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें भी अपने आप को भी एक ऐसे मिसाली वालिदैन बनाना है कि हमारे बच्चे भी इस बात पर प्राउड करें कि हमारे वालिदैन ने हमको दीन की सही तालीम देकर गए। तो ये ना हो कि हमारे बच्चे कहीं हमें अल्लाह ताला के सामने ये ना कहें कि हमारे हमारे वालिदैन ने तो हमें ये नहीं सिखाया था, हमें तो नहीं पता था, कुरान को ऐसे पढ़ना है हमें नहीं पता था, नमाज को ऐसे पढ़ना है हमें नहीं पता था। कई अक्सर ये होता है कि दुनियावी चीज़ें तो माँ-बाप सिखा देते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या करते हैं, कारियों के भरोसे पर छोड़ देते हैं। बस मौलाना आएँगे तो वो पढ़ाएँगे और पता नहीं मौलाना ने क्या पढ़ा कर गए, उन्हें पैसे दे दिए गए, वो 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, वो प्रोफ़ेशनल थे, उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, हमें नहीं पता। तो हमसे भी सवाल होगा, तुमने क्या सिखाया? तुमने क्या दीन की तालीम दी? तुमने क्या हक़ और बातिल के बारे में बताया? औलाद को कुरान की कितनी तालीम दी? ये तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान बस अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग़ हो जाए और किसी मौलाना के सामने या किसी क़ारी के सामने अपने बच्चों को बिठा दे और फिर अपने आप को बिल्कुल फ़ारिग़ुज़्ज़िम्मा समझ ले। कि इंसान से सवाल होगा कि तुमने क्या तालीम दी बच्चों को? तुमने क्या सिखाया? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें रास्ते बता दिए और रास्ते इख्तियार करने का भी हमको हक़ दे दिया। फिर नबी भी भेजे। अब ये देखिए कि अगर नबी ना भेजता अल्लाह ताला, किताब ना भेजता तो हमारे लिए कितना मुश्किल था ये जानना कि हम कौन से रास्ते पर चलें, क्या सच है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है। हमें ये समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता अगर नबी ना आते, अगर नबी हमें ना बताते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हर छोटी चीज़ बता दी। सोना कैसे है, उठना कैसे है, यहाँ तक कि टॉयलेट में बैठने का तरीका तक बता दिया। टॉयलेट में जाने का तरीका, कौन-सा पैर आगे रखना है, कौन-सा पैर बाहर निकालना है, कौन-सी दुआएँ पढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे नबी ने हमको सिखा दी, तो फिर हमारे लिए रास्ता कितना आसान हो गया। अब ये देखिए कि यही अगर नॉन मुस्लिम्स होते होंगे, तो उनके पास ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? उनको नहीं पता कि कौन-सा रास्ता सीधा है, कौन-सा गलत है, क्या क्या कैसे करना है, कैसे हम अल्लाह के जन्नतों तक पहुँच सकते हैं, उनको नहीं पता। ये हमें सब पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आपको ये ख़्याल आए तो दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अकेले बैठे-बैठे दिल में कहें कि वाक़ई अल्लाह ताला ने ये हम पर बड़ा ही इनाम किया। ये अल्लाह ताला ने हमको ये सारी चीज़ें अता की। कभी हम इस बारे में नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमें दी, कि नबी भेजे, कि कुरान दिया, कि हम सारी चीज़ें पढ़ सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं। हम तो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पड़ा है, कुरान रखा हुआ है, जब फ्री टाइम रहेगा जब पढ़ेंगे। अभी तो बहुत थकान है, अभी तो पकाना है, अभी तो हमें टाइम नहीं है। हम कुरान के लिए हम टाइम कब निकालते हैं? जब हम फारिग हों। नहीं, बल्कि हमारा एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम बना लीजिए। कुरान का पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए हमारा। वो टाइम पे हमारे सारे काम बाज़ू होने चाहिए। वो टाइम पर हमने बैठना है, पढ़ना है, तब अल्लाह ताला को हम बता सकेंगे कि अल्लाह ताला हमने इसको वैल्यू दी थी। वरना ये कि जब हमारी छुट्टियाँ, कई बहनें मुझे ऐसे कहती हैं कि हम हमारे बच्चों को क्लास जॉइन करवानी है, लेकिन अभी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो फिर हम जॉइन कराएँगे। ये कितनी बेइज़्ज़ती की बात है कुरान की, कितनी बेहुरमती की बात है कि हम कुरान को कब जॉइन करते हैं? जब बोर होते हैं, जब फारिग होते हैं, जब छुट्टियाँ पड़ती हैं, जब हमारी जॉब्स नहीं होती हैं। जब हमारी जॉब्स होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, अभी तो हमारी जॉब्स हैं, हम उसमें काफ़ी बिज़ी हैं, काफ़ी थक रहे हैं, घर में भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो हम कैसे फिर अब स्कूल है, हमारे कॉलेजेस हैं, 10th का हमारा साल है, 12th का हमारा साल है, ये सारे हमारे लेम एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, कुरान को सीखने के, कुरान को पढ़ने के। एक एक रूटीन बनाइए, अपनी ज़िंदगियों में अपना भी और अपने बच्चों का भी एक रूटीन बनाइए कि वो एक वक़्त में बैठें और एक वक़्त में कुरान को भले ही 10 आयत पढ़े, भले ही 5 आयत पढ़े, लेकिन एक रूटीन ज़रूर होना चाहिए कि वो रूटीन में बराबर पढ़ते रहें। तो जब कहीं अल्लाह ताला के सामने हम शर्मिंदा नहीं हो पाएँगे, अपने बच्चों की वजह से भी और अपनी वजह से भी। फिर आगे आ रहा है सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, फिर इससे क्या उसने क्या किया, उसको मौत दी फिर इसे और इसे कब्र में रखा। अब ये मौत देने की बात क्यों आ रही है? ये कौन-सी बड़ी बात है? हम अगर सोचे तो हम सोचेंगे यार मौत देना भी क्या बड़ी बात है? मौत तो बड़ी बुरी चीज़ है। हमारे दिलों में क्या है, मौत का एक खौफ बैठा हुआ है ना।
تو یہ موت کیا ہے؟ ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے موت، کسی کے لیے ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اب دیکھیے کہ کوئی انسان اتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، ایسی بیماری ہے اس کی کہ تکلیف دہ بیماری ہے، سخت تکلیف سے گزر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے تکلیفوں سے، اور اوپر والے اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اس کے اوپر بیش بہا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دنیا کے اس کے علاج ہو رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کئی لوگ کوما میں پڑے ہیں، سالوں سال کوما میں پڑے ہیں، نہ مرنے میں ہے نہ جینے میں ہے، دونوں کے بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، اوپر والے لوگ پریشان ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر مار رہے ہیں، پیسے بھر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ انسان کے لیے موت بھی پھر کیا ہے؟ ایک نعمت ثابت ہو جاتی ہے کہ اسے بھی تکلیف سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی پریشانیوں سے نجات ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ بستر مرگ پہ آ جاتے ہیں کہ نہ وہ زندوں کی لسٹ میں ہو سکتے ہیں، نہ وہ مردوں کی لسٹ میں ہوتے ہیں، نہ وہ پہچان سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، بستر میں ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے کرتے لوگ پریشان، اوپر والے الگ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہر طریقے سے ان کے لیے مشکل ہی مشکل ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کے لیے ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے کب ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا ملے گا۔ تو موت کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں بس زندہ ہی رہوں۔ کوئی انسان اگر یہ سوچ لے کہ وہ زندہ رہے، وہ موت اس کو نہ آئے، تو یہ سوچئے کہ وہ جب اتنی بری حالت میں جب وہ بستر پر آ جائے گا تو وہ اپنے اولاد کے لیے بھی ایک بوجھ بن جائے گا، اس کی اولاد بھی پریشان ہو جائے گی۔ تو ایسی موت سے، ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور وہ دعا ہمیں تحیات کے بعد جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، یعنی کہ اے اللہ مجھے ایسی رذیل عمر کی طرف نہ لوٹا کہ ایسی مطلب کہ میں کسی کا محتاج بن جاؤں، بستر میں پڑ جاؤں، پیشاب پاخانہ میرا بستر میں ہو جائے، یہ ساری کیا چیز ہے؟ رذیل عمر کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ تو یہاں پر اماتہ، اس کو پھر موت دی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پھر فاقبرہ، پھر اسے قبر میں اتارا۔ اب قبر میں اتارنا بھی کیا بڑی بات ہے، یہ بھی دیکھیے کہ قبر میں اتارنا اس میں کیا بڑی بات ہے کہ یہ بھی کیا نعمت ہے اللہ کی۔ واقعی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت، قبر کا مہیا کرنا بھی انسان کو اللہ کا احسان ہے کہ دیکھیے کہ اگر انسان کہیں مر جائے، کہیں ادھر ادھر اس کو قبر میں اگر نہ ڈالا جائے، اگر اس کو گھروں میں ہی پڑا رہنے دیا جائے، یا کوئی روڈ پر اگر لا کر پھینک دے لوگ اپنے مرنے والوں کو، تو اس میں کیڑے پڑ جائیں، اس کی لاش سڑ جائے، اس کے باڈی پارٹ سڑنے لگیں، اس میں سے بدبو آنے لگے، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اپنے اپنوں کو اس حال میں دیکھیں۔ تو یہ دیکھیے کہ قبر کا ملنا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک سٹوری میں کہیں سن رہی تھی کہ کہیں لاک ڈاؤن میں کہ کسی کے ساس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جب دفنانے کے لیے ایسا وقت آیا کہ چاروں طرف ایک تو لاک ڈاؤن تھا اور ایک تیز وہ بارش بھی تھی، اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ چاروں طرف طوفان آیا ہوا تھا، اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور وہ بیچ میں وہ بیٹھے تھے، چھت پر بیٹھے تھے وہ لوگ، اور بیچاروں کی ساس کا انتقال ہوا۔ تو وہ 2-3 دن تک اس طریقے سے پریشان ہوتے رہے کہ کیسے لے کر جائیں اور کیسے ان کو دفنائیں، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ جب اتنا طوفانی بارش ہو رہی تھی، تو یہ دیکھیے کہ کیسی مشکل انسان کو پیش آ سکتی ہے کہ اگر اس کو قبر نہ ملے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دے دیا۔ ایک قبر جو ہے، یہ ساری جو اس کے اوپر پیش آنے والی جو چیزیں ہیں زمین کے اندر جو ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زمین کے اندر انسان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے الگ الگ قسم کے انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ بھی ہیں ان کی قبروں میں، وہ جیسے کہ ویسے بھی رہتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا، لیکن کیا ہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے پردہ دے دیا انسان کو۔ یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے، اس کے وجود کو غائب کر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، اس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ناقابل فراموش صدمہ ہو سکتا تھا کہ وہ میت کے مرنے کے بعد، مرنے والے کے بعد اس کی میت کے جسم میں ہونے والی جو چیزیں ہیں، تغیرات ہیں، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زندوں کے سامنے لاش کی بے حرمتی ہوتی تھی، اور کیا ہے، قبر سے مراد صرف زمینی گڑھا نہیں، بلکہ کوئی انسان سمندر میں مرتا ہے تو وہی اس کی قبر ہوتی ہے، سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، آگ کا الاؤ ہو سکتا ہے، دفن جیسے کہ زمین دوز ہو گیا، اس کے نیچے دب گیا، وہ بھی اس کی قبر ہو سکتی ہے، کسی درندے نے اسے کھا لیا، وہ بھی اس کی پیٹ بھی اس کا قبر ہو سکتا ہے۔
تو इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे एक पर्दा अता कर दिया कि और ये भी देखिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने कि इंसान के अंदर कैसी-कैसी चीज़ें इंसान लेकर फिर रहा होता है, फ़ुज़ला लेकर फिर रहा होता है, पेशाब, पाख़ाना ऐसी-ऐसी चीज़ें इंसान के पेट में रखी हुई हैं, उसको भी अल्लाह ताला ने पर्दा दे दिया कि अगर वो किसी को ज़ाहिर हो जाए, तो हम कितने शर्मिंदा हों कि ऐसी चीज़ें हमारी जो छुपाने की चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर हो रही हैं। इंसान तो अपने आप को बड़ा खूबसूरत बना के पेश करता है, जब पार्टीज़ में जाता है तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, अच्छा-सा मेकअप करता है, अच्छे से बाल बनाता है। अब ये सोचिए कि अगर इंसान का पेट अगर ट्रांसपेरेंट होता और अंदर से उसकी सारी जो गंदगी है, वो ज़ाहिर हो रही होती, तो एक-दूसरे से कितनी कराहियत आती। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए क्या किया, एक पर्दा दे दिया कि उसके मरने के बाद भी एक पर्दा है और उसकी ज़िंदगी में भी एक सारी चीज़ें छुपा दी कि एक-दूसरे से ही इंसान किराहियत करता, कि उसकी गंदगी उसको सामने से नज़र आती, तो सोचिए कि क्या हाल होता उसका एक-दूसरे का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का ये हमारे लिए एक नेमत है, एक एहसान है कि उसने मौत भी दिया और उसने कब्र भी हमें अता कर दी। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर वो जब चाहेगा उसको दोबारा खड़ा कर देगा। अंशरा किससे है? नशरा से है। नशर करना यानी कि फैला देना, न्यूज़ भी नशर की जाती है ना? इसी तरीके से अंशरा कि वो उठा खड़ा कर देगा, फैला देगा इंसान को। अब ये भी उसके बस में नहीं है इंसान के कि वो कब्र में जाए तो अपनी मर्ज़ी से उठ जाए। अब ये ना उसका पैदा होने में उसका कोई ज़ोर था, ना उसके मरने और जीने में मौत के वक़्त उसका कोई ज़ोर था कि वो अभी नहीं मरना चाहता, अभी 1 साल और रुके, अभी 2 साल रुके। इसमें भी अपना उसका कोई ज़ोर नहीं था और जब अल्लाह ताला उसको दोबारा कब्रों से उठाएगा, जब चाहेगा दोबारा खड़ा कर देगा। कि यहाँ पर इज़ा शाअ, जब अल्लाह चाहेगा तो ये होगा, यानी कि अल्लाह नहीं चाहेगा तो जब तक इंसान अपनी-अपनी कब्रों में पड़ा रहेगा और वो किस हाल में पड़ा रहेगा, वो नहीं पता। कल्ला, हरगिज़ नहीं, लम्मा यक़दी मा अमरा, हरगिज़ नहीं, जिस बात का इसे हुक्म दिया गया था, वो फ़र्ज़ इसने क़तअन पूरा नहीं किया। यानी कि इंसान को ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके सामने सारे अहकामात दे दिए गए थे, उसके बावजूद भी फिर क्या है कि वो फ़र्माबरदार बनकर नहीं रहा। उसने क्या किया, अपनी मर्ज़ी, अपने नफ़्स को उसने इलाहा बना लिया, अपने नफ्स की उसने ख्वाहिशात को पूरी करने के पीछे लग गया, दुनिया कमाने के पीछे लग गया और उसने क्या किया कि अल्लाह ताला ने जो उसके ऊपर अहकाम रखे थे, जो फ़र्ज़ रखे थे, वही उसने पूरे नहीं किए। कि देखिए कि जब इंसान बिज़ी होता है, तो अक्सर ये होता है कि उसकी नमाज़ें छूटती है, उसके रोज़े छूटते हैं, उसके जो दीन के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो छूटते रहते हैं, कि इंसान कभी-कभी अपने घर के कामों को भी इतना अपने ऊपर लाद लेता है कि ना वो कुरान की क्लासेस में आ सकता है, ना वो कोई अपनी नमाज़ें एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। नमाज़ भी पढ़ते हैं कुछ ख़वातीन जो ऐसी होती हैं कि बस जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ें और बस ख़त्म करें, कि ये हाल होता है उनका कि ये काम हमारा फलाँ पड़ा है, जल्दी से नमाज़ पढ़ना है और फिर फ़ौरन ही जाकर तो फिर बाकी के हमें काम ख़त्म करना है। तो इंसान का ये हाल होता है कि ये इंसान इतना बिज़ी है अपने आप में कि उसको इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने लिए अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए टाइम निकाले। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि कैसा है इंसान कि उसको तो एक तो मैंने ऐसे इतने एहसान जताया अल्लाह ताला ने कि मैंने ये और ये और ये दिया तुमको और उसके बावजूद भी तुम अपने फ़र्ज़ नहीं पूरे कर रहे। सुन्नतें दूर की बात, नफ़िल तो दूर की बात, सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पूरे नहीं कर रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनके रोज़े अभी तक रहते हैं, 40 साल, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, उनके रोज़े फ़र्ज़ पूरे नहीं हुए। उनकी नमाज़ें अक्सर छूटती रहती हैं, फ़र्ज़ कम से कम मेरी बहनों फ़र्ज़ की कम से कम अहमियत करें, फ़र्ज़ ना छोड़ें। ठीक है, आप सुन्नत के लिए आप एक्सक्यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर भी वही बात आ रही है ईमान की और तक़वे की कि इंसान जब बहुत ज़्यादा अपने तक़वे में पहुँच जाता है, ईमान में बढ़ जाता है, तो वो फिर अपनी नफ़िल भी छूटती है ना, तो उसको बुरी लगती है। जैसे किसी की तहज्जुद छूट जाए ना, उसको वो भी बुरा लगता है कि हाय! आज मेरी तहज्जुद छूट गई। हाय! मेरा आज मंडे का रोज़ा छूट गया। हाय! मेरा थर्सडे का रोज़ा छूट गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ये तो काउंटेबल नहीं है। अल्लाह ताला इसके बारे में पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसका ईमान का लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो अपनी नफ़िल भी उसको मिस हो जाए तो उसको दुःख होता है, बुरा लगता है कि हाय! अब मेरा ये सारी चीज़ें मेरी कैसी छूट गई। और उसके बरअक्स कैसे लोग हैं, हाँ, चलो फ़र्ज़ नमाज़ है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं मार्केट में हूँ, फिर मैं घर पे जाके क़ज़ा पढ़ लूँगी। अब चलो बहुत रात हो गई, बहुत थक गई हूँ, मैं स्कूल का पढ़ रही थी, कॉलेज का पढ़ रही थी, ऑफ़िस का वर्क कर रही थी, अब मैं इतना थक गई हूँ, चलो कोई नहीं, एक दिन इशा नहीं पढ़ी तो क्या हुआ?
चलो कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, चलो क़ज़ा पढ़ लेंगे। चलो आज फ़जर में तो आँख नहीं खुली क्योंकि मैं रात में 3 बजे तक जाग रही थी। मैं बच्चों को भी हम ऐसे ही करते हैं ना कि नहीं-नहीं उनकी तो एग्ज़ाम है तो वो 3 बजे तक जाग रहे थे, 4 बजे तक जाग रहे थे, तो हम उनको नमाज़ को नहीं उठा रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं हम? उनके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। उनके साथ सौतेलापन कर रहे होते हैं। ये आप हस्बैंड्स के साथ अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, अपने हस्बैंड्स को नमाज़ के लिए नहीं उठाती, क्यों? क्योंकि नहीं-नहीं वो तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको रात में काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, वो तो काफ़ी देर तक काम कर रहे थे, वो ऑफ़िस के काम कर रहे थे। इस तरीके से क्या करती हैं ख़वातीन, अपने शौहर को नमाज़ों के लिए नहीं उठाती। तो ये भी उनसे सवाल किया जाएगा कि वो क्यों नमाज़ को नहीं उठाई थी उन्होंने, बच्चों को क्यों नहीं उठाया था नमाज़ को? तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि जो फ़र्ज़ है कम से कम वो तो पूरे कर लो। कम से कम अल्लाह ताला ने ये तो देखिए कि सुन्नत और नफ़िल हमारे लिए पाबंदी नहीं कर दी उसकी हमारे लिए कि आप पढ़ना है पढ़ें, ना पढ़ना है ना पढ़ें। आपको अगर ज़्यादा अजर समेटना है तो आप सुन्नतें पढ़ें, आपको और ज़्यादा अजर समेटना है आप नफ़िल भी पढ़ें। लेकिन कम से कम फ़र्ज़ तो पूरा कर लें, उसके टाइम पर अदा कर लें। ये ना हो कि वक़्त गुज़रने के बाद फिर अदा करें कि नहीं अभी मैं खाना पकाऊँगी, फिर मैं बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं जब हाथ-पाथ धो लूँगी, तो फिर मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी। ज जब तक तो होता है, पता चला कि बिल्कुल आखिरी वक़्त में हमने नमाज़ पढ़ी। वक़्त क हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि हमने वज़ू करके रेडी रहना चाहिए। हो सकता है कि मुसल्ले पे बैठे रहना चाहिए कि भई पहले नमाज़ मैं पढ़ लूँगी, तो फिर मैं बाकी के काम बाद में स्टार्ट करूँगी। तो हमारा हर जगह हम कहीं जा रहे हैं, कि बाज़ार में जा रहे हैं, कि सफ़र में जा रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि अब फलाँ नमाज़ का टाइम आएगा बीच में, तो मैं ये नमाज़ कहाँ पढ़ूँगी? कौन-सी जगह ऐसी मुझे मयस्सर होगी कि जहाँ पे मैं कंफर्टेबली अपनी ये नमाज़ अदा कर सकूँगी, कि असर का टाइम बीच में आने वाला है, मगरिब का टाइम बीच में आने वाला है, तो ये घर से प्लानिंग करके निकलें। ये है अल्लाह ताला के साथ यानी कि फ़र्ज़ को अदा करने का तरीक़ा और अल्लाह ताला की लिस्ट में अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की लिस्ट में आने का तरीक़ा क्या है कि इंसान ये सोचे पहले कि मैं फ़र्ज़ में कहीं कोताही ना करूँ। कहीं गलती से भी मुझे फ़र्ज़ में मेरी कोताही ना हो जाए और मेरी नमाज़ भी कैसी हो कि ऐसी हो कि पसंदीदा हो। ये ना हो कि धड़-धड़ सजदे किए, धड़-धड़ नमाज़ें पढ़ी, 5 मिनट की बजाय 2 मिनट में हमने पढ़ी और बस भागे हम किचन में, भागे हम ऑफ़िसों को, भागे हम अपने दुनिया के कामों को। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हरगिज़ इसने क्या किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना और उसने फ़र्ज़ भी अदा नहीं किया। फलयंजुरिल इंसानु इला तुआमिही। बस चाहिए कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे। अब देखिए कि अल्लाह ताला एक-एक नेमत हमें गिना रहा है ताकि इंसान को जगाए कि इंसान कैसा है, गफलतों के अंधेरों में पड़ा हुआ है, नींद से जाग नहीं रहा है, तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है, फिर उसको एक-एक चीज़ से बता रहा है, एक-एक चीज़ उससे याद दिला रहा है कि देखो ये भी और ये भी मैंने तुमको अता किया। फिर अब उसको बता रहा है अल्लाह ताला कि तुम इंसान अपने खाने की तरफ देखिए कि अल्लाह ताला ने खाने का कैसा सिस्टम बनाया। कैसे तुम्हारे लिए खाने कैसे अलग-अलग किस्म के खाने उसने पैदा किए और अल्लाह ताला ने कैसा इंसान के लिए अनाज उगाया। अब ये देखिए कि कैसे अलग-अलग किस्म के खाने हमारे पास हैं। अगर हमारे पास सिर्फ़ एक ही किस्म का खाना होता, सोचिए कि सिर्फ़ एक गोश्त होता या फिर एक वेजिटेबल होती या सिर्फ़ एक दाल ही होती, तो हम रोज़ खा-खा के बेज़ार हो जाते। यहाँ देखिए कि हमारे पास अलग-अलग अनवा व अक़साम के खाने हैं। कभी हम दाल खाते हैं, कभी हम चिकन खाते हैं, कभी हम मटन खाते हैं, कभी हम फ़िश खाते हैं। हमारे पास इतने खाने के बावजूद फिर क्या है हमारे बच्चे, नहीं ये तो मैं नहीं खाती, नहीं ये तो मुझे नहीं पसंद। अक्सर लोगों का इस तरीके से रवैया होता है खाने के साथ कि जब दफ्तर पे बैठते हैं तो कहते हैं कि नहीं-नहीं ये तो मैंने मैंने मुझे नहीं पसंद, ये क्यों बनाया? बच्चे अक्सर इस तरीके से माँओं ने बच्चों को बिगाड़ा हुआ होता है, जो बिगड़ी हुई औलादें होती हैं ना, तो वो इस तरीके से कहती हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाती, मुझे तो ये नहीं पसंद। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कह रहा है कि इंसान अपने खानों की तरफ तो देखे कि उसको अल्लाह ताला ने कैसे-कैसे अलग-अलग किस्म के खाने उसको अता कर दिए और यहाँ पर एक चावल का दाना ही ले लीजिए कि कैसे-कैसे प्रोसेस से गुज़र कर कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे उसके खेत हैं, कैसे वो परेशानियों से फिर किसान उसको ग्रोथ करता है और फिर हम तक वो चावल के दाने, गेहूँ के दाने, अनाज की अलग-अलग किस्में हम तक पहुँचती हैं। अनाज भी हम एक किस्म का नहीं खाते, कभी हम गेहूँ खाते हैं, कभी हम चावल खाते हैं, कभी हम अब ये देखिए क्या ऐसा होता है कि कभी हमने सिर्फ़ रोटी खा ली, नहीं रोटी के साथ हमें सालन भी चाहिए, सालन में फिर गोश्त भी चाहिए, फिर वेजिटेबल्स भी चाहिए, फिर सालन के साथ अचार भी चाहिए, फिर उसके साथ पापड़ भी चाहिए, फिर उसके साथ चावल भी चाहिए। चावल भी ऐसे प्लेन राइस नहीं चाहिए, बिरयानी चाहिए।
कैसी हमारी थिंकिंग है, कैसी हमारी ख्वाहिशात है कि इंसान फिर भी क्या है, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। इतनी नेमतें उसके टेबल पे होने के बावजूद अक्सर होता है कि खाने के बाद इंसान दुआ पढ़ना भी भूल जाता है। कभी बैठ के इंसान ये नहीं सोचता कि मुझे अल्लाह ताला ने कैसी-कैसी नेमतों से नवाज़ा है। कैसे-कैसे मेरे फ्रिज में अलग-अलग किस्म के खाने भरे पड़े हैं कि ये नहीं है तो ये खा लो, ये नहीं है तो ये खा लो। आज हमारे बच्चों के लिए उनको पता ही नहीं है कि तकलीफ भरी ज़िंदगी कैसी होती थी। पहले के ज़माने में लोग 2-2 3-3 दिन भूखे हुआ करते थे। आज के ज़माने में सब तरफ ऐसे है कि हर किस्म के खाने घरों में पड़े हैं और बच्चे हैं कि खाने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चे नाक मुँह चढ़ाते हैं खाने को देखकर कि नहीं हमें ये नहीं खाना, नहीं हमें वो नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद भी पढ़ समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है कि देखो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसी बनाई हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसा इसका इंतज़ाम किया, कैसे हम तक पहुँचाया और अल्लाह ताला ने कैसे हमारे लिए इनाम किया कि एक-एक अलग-अलग किस्म के हमको खाने अल्लाह ताला ने अता कर दिए और अल्लाह ताला चाहता तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं देता। एक सिर्फ़ मन और सलवा जो था पहले बस वही रहता। तो देखिए कि कैसे अलग-अलग अनवा व अक़साम के अल्लाह ताला ने हमको खाने अता कर दिए और अल्लाह ताला ने हम पर ये इनाम किया। हम तो ऐसे हैं भी नहीं, इतने नेकोकार भी नहीं है हम कि उसके बावजूद भी अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम पर बरसा रहा है कि ये सारी चीज़ें हमने कभी माँगी भी नहीं। कभी हम इसके बारे में बैठ के दुआ भी नहीं करते कि अल्लाह ताला मुझे रोटी भी चाहिए, मुझे चावल भी चाहिए, मुझे चिकन भी चाहिए, मुझे बिरयानी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बिन माँगे मिलती रहती हैं। और देखिए कि हम अल्लाह का शुक्र कितना कम अदा करते हैं। खाते रहते हैं, फिर एन्जॉय करते रहते हैं, फिर हर वक़्त हमारा एन्जॉय में गुज़रता है, फिर अल्लाह की नाफ़रमानियों में बिज़ी हो जाते हैं। दुनिया के कामों में बिज़ी हो जाते हैं, दौलत कमाने में बिज़ी हो जाते हैं, स्टेटस को सँवारने में मसरूफ़ हो जाते हैं। कि यही हमारी ज़िंदगी है? क्या अल्लाह ताला ने क्या हमें इतनी नेमतें देने के बाद क्या हमारा काम बनता है कि हम हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करें? हम देखें अपने खानों की तरफ देखें, कैसे-कैसे किस्म के मशरूबात हैं, कैसे-कैसे किस्म की शरबत है, कैसे-कैसे किस्म के ड्रिंक्स हमारे आस-पास है, दूध है, चाय है, अलग-अलग किस्म के जो इंसान जो पसंद करता है, उसको अल्लाह ताला ने उस तरीके की चीज़ें अता कर दी और अल्लाह ताला हमसे ये नहीं बोलता कि तुम शुक्र नहीं अदा करे तो मैं सारी चीज़ें छीन लूँगा। बल्कि अल्लाह ताला हमें देता रहता है, नवाज़ता रहता है और ये भी है कि इंसान को अल्लाह ताला क्या करता है, 2 तरीके से आज़माता है इंसान को। कुछ लोगों को देकर आज़माता है, कुछ लोगों को नहीं देकर आज़माता है। हम अक्सर अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनके पास नेमतें ही नेमतें हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ नहीं आते। वो इतने अपनी नेमतों में बिज़ी हैं, अपनी धुन में हैं कि उनको ये याद ही नहीं रहती कि हमें अच्छे काम भी करना है, अल्लाह को राज़ी भी करना है। बल्कि वो अब बस इतना खुश है और वो अपने दिलों में अल्लाह ताला शैतान ने उनके गुनाहों को ऐसा मुज़य्यन कर दिया कि वो नेमतों को भी क्या समझते हैं, हम बड़े नेक हैं करके अल्लाह ताला ने हम पर ये इनाम किया। बल्कि नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको उसमें इतना बिज़ी कर दिया कि वो इस तरफ आए ही ना। वो तौबा इस्तग़फ़ार भी ना करें, वो दीन की तरफ आए भी ना क्योंकि अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया उनका दीन में आना। अल्लाह ताला ने जिनको पसंद किया दीन की तरफ आना, वो दौड़-दौड़ कर आने लगे। अल्लाह ताला ने जिनको पसंद किया कुरान की ऐसी महफ़िलों में बिठा देना, तो वो सारे काम-काज छोड़कर अपनी ऐसी महफ़िलों में आकर बैठ गए। उन्होंने अपने कुरान को अपना साथी बना लिया, अपनी नमाज़ों को अपना साथी बना लिया और वो इसमें ही अपनी ज़िंदगियों को तलाश करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो कुरान और नमाज़ पढ़ते हैं, जो क्लासों में जाते हैं, उनके सारे काम पीछे रह जाते हैं। नहीं, बल्कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि उनके सारे काम उनके आसान होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मुश्किलें आई या उनके घरों में सब खाने नहीं बन रहे या उनके काम नहीं हो रहे, बल्कि उल्टा होता है कि जो कुरान के लिए अपना टाइम निकालते हैं, अल्लाह के लिए अपना टाइम निकालते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देते हैं, नेमतों से भी नवाज़ देते हैं और दुनिया और आखिरत में उनके लिए दोनों जहाँ में उनके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ पैदा कर दी जाती हैं। अन्ना सबबनल माअ सब्बा और हमने आसमान से बारिश बरसाई यानी कि क्या है हमने ही ऊपर से पानी बरसाया फिर क्या किया हमने सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फिर हमने आसमान से पानी बरसाया और जमीन को फाड़ा यानी कि देखिए कि ये आसमान से पानी का बरसना बारिश का जमीन पर आना भी एक क्या है एक नेमत है अपने खाने की चीजों पर इंसान गौर करे बारिश की तरफ इंसान को गौर करे कि अगर बारिश ना हो तो सारा का सारा जो खेतों में पड़ा सड़ा अनाज है वो सड़ जाएगा इस तरीके से वो ना ग्रो होगा ना खेत उगेंगे ना उसमें से बीज निकलेगा कि इंसान क्या है ये काम जमीन में हल चलाकर इंसान कर सकता है लेकिन जब तक बारिश नहीं बरसेगी
تو انسان کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے لیے بیکار بیٹھا رہ جائے گا، بے بس ہو جائے گا انسان کہ اگر بارش نہ برسے. کیا دیکھیے کہ بارش جو برستی ہے آج کل، جو آرٹیفیشل بارش جو برسائی جا رہی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ تو ایک چھوٹے سے مقام پر وہ بارش برسا سکتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب بارش برستی ہے ساری دنیا میں برستی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو گنا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کے لیے بارش برسائی، اور انسان کیسا ہے اس کے باوجود انسان ناشکرہ ثابت ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم 25 آیت نمبر 25 تک رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. خیر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ آنے کو اور قرآن کو سمجھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا کی اس کا شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.